اس عورت کے جنازے کو دیکھنے کا کہ جن مردوں کا نکاح اس عورت سے حرام. یاد رکھیے گا دونوں جانب سے یہ جملہ اگر یاد رہے تو انشاءاللہ ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا ورنہ کہیں الجھن کا شکار بن سکتے. دو قانون دو اصول ہیں. اگر جنازہ مرد کا ہے وہ عورتیں دیکھے جن عورتوں کا نکاح اس سے حرام ہے, اور اگر جنازہ عورت کا ہے وہ مرد دیکھیں گے جن مردوں کا نکاح اس عورت سے حرام ہے. اگر یہ دو قانون آپ کے ذہن میں اگر رہ جائے تو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر مسئلہ آسان ہو جائے گا, سمجھنا بھی ہے. جیسے جنازہ ماں کا ہے, بیٹے کا نکاح ماں سے حرام ہے, بیٹے کو حق حاصل ہے کہ اپنی ماں کا جنازہ دیکھے. جنازہ اپنی سگی بہن کا ہے, سگا بھائی کو حق حاصل ہے کہ اپنی بہن کا جنازہ دیکھے گا. جنازہ بیٹی کا ہے, باپ کو حق حاصل ہے کہ باپ اپنے بیٹی کا جنازہ دیکھے گا. یہ وصول ہے. جنازہ بھانجی کا ہے, ماما کو حق حاصل ہے کہ اپنے بھانجی کا جنازہ دیکھے گا. جنازہ بھتیجی کا ہے, چاچا کو حق حاصل ہے کہ اپنے بھتیجی کا جنازہ دیکھے گا. مگر یاد رکھیے گا جن مردوں کا نکاح اس عورت سے حلال تھا, جیسے دنیاوی زندگی میں دیکھنا حرام ہے, وہ نکل جانے کے بعد بھی اس عورت کو دیکھنا حرام ہے. دیکھنا حرام ہے. شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جنازہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. ایسی بنیاد پر ایک رواج بنا ہوا ہے, ایک چلن بن گئی ہے. جنازہ دیکھنے کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں, بلا شبہ ثواب ہے. نماز پڑھنا ثواب ہے. جمعہ کی نماز پڑھو گے تو اور ثواب ہے. آج جمعہ پڑھ لیا جائے, جمعہ کو دن پڑھنا ہوگا نا, اور امام کے پیچھے پڑھنا ہوگا کہ اکیلے پڑھو. ایک وصول ہے, دن جمعہ کا ہونا چاہیے, وقت ظہر ہونا چاہیے, امام کی اقتداء میں ہونا چاہیے. یہ شرائط ہوگی, ہے کہ نہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے حج ہو جاتا ہے, تو وزیر کے مسجد کا طواف کر لو گے حج ہو جائے گا. ایک وصول ہے, ایک ذمہ داری ہے, ایک قانون ہے. کون سا بیت اللہ, کون سا اللہ کا گھر. لہذا یاد رکھیے گا جنازہ دیکھنا ثواب کا کام ہے. سب جنازہ دیکھو گے. کسی کی بیٹی کا جنازہ ہے جس کو اس روح زمین پر دیکھنا حرام تھا تمہارے لیے, یاد رکھنا روح نکلنے کے بعد اس کا دیکھنا حرام ہوگا. جو قانون زندگی سے پہلے کا ہے وہی قانون زندگی کے بعد کا ہے. اگر اس زندگی میں دیکھنا حلال ہوگا, مرنے کے بعد بھی دیکھنا حلال ہوگا. اس زندگی میں دیکھنا حرام ہوگا تو مرنے کے بعد بھی دیکھنا حرام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں بات کرنا چاہوں گا. بہت زیادہ گھبراہٹ تو نہیں آپ لوگ, باہر والے شاید بہت دھیان نہیں ہوں گے, بیچارے الجھن میں ہوں گے. اللہ فضل فرمائے بس لمحہ, لیکن ختم بھی کر دیں گے تو کیا کریں گے, آپ کہاں جائیں گے, ایسے بیٹھے رہنا ہوگا. اس لیے کچھ ضروری باتیں سن لے, شاید زندگی میں کام آ جائے. ایک بار درود شریف ہو جائے, سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک وصول ہم نے آپ کو بتایا, جنازہ کا دیکھنا ثواب, مگر کچھ قانون کے ساتھ, کچھ پابندیوں کے ساتھ, ہے کہ نہیں. یہ سڑک بنی ہے, مین روڈ ہے, سرکار کا ہے, آپ بھی سرکار کا ہو, آپ کی مرضی چلے گی, جیسے چاہو گے ویسے چلو گے نہیں. ایک قانون ہے, ایک قانون ہے. فور ویلر والا کہاں چلے گا, ٹو ویلر والا کہاں چلے گا, اب پیدل والا کہاں چلے گا, ہے کہ نہیں قانون. اب ایک قانون چلو گے تو کچل جاؤ گے, ہے کہ نہیں. زندگی کا سامنا کرنا, زندگی موت کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے ہر ایک کا ایک وصول ہوتا ہے. سڑکوں پہ چلنے کا ایک وصول ہے, گھروں میں رہنے کا ایک وصول ہے. تو یاد رکھنا جنازہ ہو جائے تو اس کے لیے دیکھنے دکھانے کا ایک وصول. اب ہمارے یہاں کا کیا ہے, جنازے تیار ہو جاتے, جنازہ تیار ہو جائے, سر کے طرف کفن باندھ دیا گیا, پیر کی طرف کفن باندھ دیا گیا. ایک تیز ترار بندہ جو اپنے محلے کا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر محلے میں, ہر گاؤں میں, کچھ بے باک قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اعلان کرتا آئیے, تو بولتا ہے کہ نہیں, یہ دعوت دیتا ہے, صاحب آئیے دیدار کر لیجیے. اب صاحب ایک بھیڑ لگتی, ایک مردوں کی بھیڑ لگتی ہے, سب گھر گھر کیسے دیکھتے کہ مت پوچھو.
औरतों की एक दूसरी जमात वहीं पे आती है, वो भी भीड़ लगा के जो आंखें फाड़ फाड़, एक आदमी पीछे खड़ा भी हो जाता जनाजा, वो खोलता है बांधता है, खोलेगा बांधेगा, है कि नहीं? याद रखना इस्लाम की शहजादों, बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दिद मिल्लत माजिया इमाम अहमद रज़ा खान का एक शेर है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में बंद, है कि नहीं है? मैं अर्ज करना चाहूंगा, जैसे आप देखते हो, देखने का हक हासिल, पहले मैंने बता दिया जनाजा मर्द का है, मर्दों को हक हासिल है देखे, लेकिन औरतें अगर देखना चाहे तो कानून होगा, एक वसूल एक ज़ाब्ता होगा, उन औरतों को हक है कि उस जनाजे को देखे जिन औरतों का निकाह उस मर्द से हराम था, और अगर जनाजा औरत का है तो औरतों को हक हासिल है कि औरतें देखें, मगर मर्द अगर देखना चाहे तो यहाँ पे मजहब का वसूल होगा, वही मर्द औरत के जनाजा को देखेगा जिन मर्दों का निकाह उस खातून से हराम। अब वो सैलान के बाद लोग भीड़ लगा देते, नहीं पहचान करते कि किसी की बेटी है वो, किसी की बहन है वो, किसी की माँ है वो, किसी की बीवी है। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मसला आप तो मोहल्ला के रहने वाले हो, रिश्तेदार हो, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, बीवी का इंतकाल हो जाए, अपनी बीवी का इंतकाल हो जाए, मजहब का वसूल यह है कि मर्द उसको गुस्ल नहीं दे सकता, शौहर उसको गुस्ल नहीं दे सकता, शौहर उसको कफन नहीं पहना सकता है। इतनी पाबंदी है जनाजे के बाद, रूह निकल जाने के बाद अपनी बीवी का जनाजा हो जाए, शौहर को यह हक हासिल नहीं है कि उसको गुस्ल दे सके, शौहर को यह हासिल नहीं है कि उसको कफन पहना सके। अब बताइए मोहल्ले वाले उसको दौड़ते हैं नहलाने के लिए, मोहल्ले वाले उसको पता नहीं क्या 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 उसके साथ सुलूक करते। मैं अर्ज करना चाहूंगा इतना आजाद मजहब इस्लाम नहीं है, मजहब इस्लाम बड़ी पाबंदियों वाला मजहब है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि आप जो चाहो, कभी कभी आप लोग कहते हैं हम लोग तो मौलवी मौलाना है नहीं, आप इसकारी है नहीं, मुफ्ती साहब तो है नहीं, हम लोग तो जाहिल गंवार है, कुछ करेंगे सब खुदा कबूल कर लेना, है कि नहीं? इतना आसान नहीं है यारो। याद रखना तुम्हारी हिदायत के लिए सूरज जमीन पर खुदा ने कमोबेश 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 नबियों को भेजा तुम्हारी हिदायत के लिए, है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो जाए कि वो खुदा हमारा हम उसका बंदा, हम कुछ करेंगे सब कबूल कर लेगा, इतना आसान नहीं है। तुम्हें वैसे करना होगा जैसे मुस्तफा ने बताया, है कि नहीं? नमाज वैसे पढ़ना होगा जैसे मुस्तफा ने बताया है, कपड़ा वैसे पहनना होगा जैसे मुस्तफा ने बताया, है कि नहीं है? ये जिम्मेदारी आपकी है, तो जनाजों के साथ भी वही सलूक करना होगा जो कानून जो मुस्तफा ने बताया, ठीक है? अब एक बात, आज के बाद मेरा ख्याल है कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने तौर पर निभाओगे कि जनाजा किसी खातून का हो जाए, चाहे मोहल्ले का खातून हो या रिश्तेदारों में, तो देखने से पहले ये फैसला लेना कि उस औरत के साथ मेरा निकाह हराम था कि हलाल था। अगर हलाल है तो मत देखना, अगर हराम था तो देख लेना, है ना? तब मैंने बता दिया किस औरत से किसका निकाह हराम। जैसे माँ से बेटा का निकाह हराम है तो बेटा अपनी माँ का जनाजा देखेगा, बात समझ में आई? सगा भाई से बहन का निकाह हराम है ना? पूरा मोहल्ले भर की बहनों को मत ले लेना। हाँ, अब कभी कभी होता है ना, बहने ना है, अरे बहन है तो कैसी बहन है? अगर मैं मेरी बहन है तो बताओ उसे निकाह हलाल है कि हराम? आज बोलिए हलाल है ना? तो उसका देखना यहाँ हराम, तो मरने के बाद हराम ही रहेगा कि हलाल हो जाएगा? अच्छा, चेरी बहन से निकाह हलाल है कि हराम है? तो उसको देखना हलाल है कि हराम? हराम। तो मरने के बाद बहन बहन करके दौड़ना माँ, है ना? अपनी बहन हो, सगी बहन हो तो उसका देखना हलाल होगा, और अगर ममेरी खलेरी चचेरी फुफेरी हो तो याद रखना सबसे निकाह हलाल है, इसलिए उसका देखना हराम है, और मरने के बाद भी हराम है, मरने से पहले भी हराम। बात समझ में आ गई? लिहाजा आज के बाद से वैसे ही देखिएगा। अच्छा, जनाजा कब तक देख सकते हैं? एक मतलब ये रूह निकल जाने के बाद कब तक देख सकते हैं, है कि नहीं? कभी कभी हम लोगों की नजरें पड़ती है, अंदर से बड़ी पुख्त महसूस होता है, लेकिन वो मजमा में बोल नहीं पाते हैं कि हंगामा होगा, एक नया झगड़ा होता है, हमारे भाई बात कोई देखी तो क्या करवा, मसला है? अरे माँ तुम्हारी है, बहन तुम्हारी है, बीवी तुम्हारी है, मैंने माना, मगर याद रखना तुम जो चाहोगे वो नहीं चलेगा, बल्कि मुस्तफा जो चाहेंगे वो होगा, मुस्तफा जैसे बताएंगे वैसे करना होगा। बात समझ में आ गई? लिहाजा आज के बाद से मेरा ख्याल है कि जब औरतों का जनाजा हो जाए,
मर्दों का यह हक है कि पहले फैसला ले कि वो औरत कौन है। अगर वो हराम है तो तुम देखना, अगर उससे निकाह तुम्हारा हलाल था तो उसको देखने की कोशिश मत करना। एक सवाब क्या पाओगे, ऊपर से गुनाह कबीरा बोल बोलोगे, गुनाह कबीरा। जनाजा देखोगे गुनाह लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनाजा देखने से खाली सवाब मिलता है। दूसरे के जनाजा देखोगे हराम है, देखोगे गुनाह लिखा जाएगा। ठीक है, अब कब तक जनाजा देख सकते हैं? रूह निकलने के बाद से लेकर जब तक उसकी नमाज जनाजा न पढ़ ली जाए। अगर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है, नमाज जनाजा से पढ़ने से पहले जिन लोगों को देखने का हक है वो देखेंगे, मगर नमाज जनाजा हो जाने के बाद अब कोई नहीं देखेगा। याद रखना, किसी को यह हक हासिल नहीं है, चाहे सगा ही क्यों ना जाए, उसको भी देखने का हक हासिल नहीं है। जनाजा की नमाज से पहले तक देखने का हक है, जनाजे के बाद नहीं। क्यों? जनाजा की नमाज पढ़ लेने के बाद अब बरज़खी मामलात उसके साथ शुरू हो जाते हैं, बरज़ख वाले मसाइल उसके साथ शुरू हो जाते हैं। कहीं किसी खतरा का शिकार न हो जाए, कोई हादसा का शिकार न हो जाए, इसलिए मज़हब देखने की मना। बात समझ में आ गई? जनाजा की नमाज से पहले आप देखोगे, जनाजा की नमाज के बाद अब बरज़ख के मामलात उसके जो कब्र में जाने के बाद सब शुरू नहीं होता है ना। ऐसा मत सोच लेना कि जब तक हम दफन नहीं करेंगे तब तक मुनकर नकीर नहीं आएंगे, है कि नहीं? अगर तुम जनाजा को 6 महीने में दफन करो तो मुनकर नकीर नहीं आएंगे, आएंगे ना? उनका एक टाइम है, रूह निकलने के कितने देर बाद हमको पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि जब तक तुम दफन नहीं करोगे तब तक वो अजबे नहीं करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अरे जनाजा कभी कभी आप सुनते होगे ना सऊदीया वगैरह में, फरवरी में इंतकाल किया है, सितंबर में जनाजा भारत आता है कि नहीं आता है? तो तब तक मुनकर नकीर नहीं पहुंचे वहाँ, ऐसा नहीं है। लिहाजा याद रखना, अच्छी तरह ध्यान में महफूज रखना, नमाज जनाजा पढ़ने से पहले जिनको देखने का हक हासिल है वो देखेंगे, और नमाज जनाजा पढ़ लेने के बाद अब कतई किसी को न देखने का हक है न दिखाने की कोशिश करें आप, वरना ऐसा हो सकता है किसी हादसे का शिकार हो जाए और मुमकिन है किसी बड़े मुसीबत में आप गिरफ्तार हो। छोटे और कमजोर दिल के जो लोग होंगे शायद वो बर्दाश्त न कर सकें और कहीं नए हादसे का शिकार हो जाए। लिहाजा मजहब के कानूनों पे अमल कीजिए, आप अपने मन बदलने का काम न। रबी खान गिरामी, ये चंद बातें हमने सिर्फ इस बुनियाद पे हासिल किया है कि कभी कभी जनाजे की नमाज के बाद बेटी आती है ना, अब बेटी के लिए साहब उसके जनाजे खोले जाते हैं। ये बताओ देख के क्या करेगी? रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। एक बेटी को दिखाने के लिए कम से कम 100 आदमी दिखवाने वाले होते हैं, उसी के बहाने से सब देखना शुरू कर देता है। लिहाजा एक नई मुसीबत होती है, इन मुसीबतों से हमको भी बचना चाहिए और हम सब लोगों को भी बचना चाहिए, और कोशिश करें कि इस पर हम लोग अमल करें। रब की बारगाह में दुआ करना चाहूँगा, परवरदिगार बानी महफिल अली जनाब मोहतरम शहजाद खान साहब के हर एक जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमाए, उसकी वालिदा की कब्र पे रहमत और रहमत की बरसात अता फरमाए, उनके वालिद मरहूम की कब्र में करवट करवट जन्नती की छोटे अता फरमाए, और ये घर से और भी जो लोग दुनिया से वसत फरमा चुके मौला सबों के कब्रों पे रहमत और रहमत की बरसात अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।